Welcome students to RZ channel. This is worksheet number 34 science and chapter number 3 metals and non-metals dated 21st 9 2020. तो इससे पहले हमने मेटल एंड नॉन मेटल में 2 वीडियो और बनाए हैं. चैप्टर 3 है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है. काफ़ी टॉपिक्स इसके हट चुके हैं आपके सिलेबस में से. जो टॉपिक्स अभी हैं सिलेबस में वो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाकी मार्क्स इन्हीं टॉपिक्स को लौट हो गए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज आयोनिक कंपाउंड्स. तो ionic compounds, we will study about ionic compound. I will use English and Hindi both because we can so you can understand easily. So see the whole video and share to your friends, and also subscribe the channel and press the bell icon for the notifications. Subscribe channel and watch the full video so that you can understand the full topic very easily. I will tell you it very easily. You will understand the topic. So you have to subscribe the channel. The red button subscribe has to be pressed for another videos. So see, our topic is ionic compounds in the chapter 3rd, metal and non-metals. After this video we will do some practice questions which are also in the worksheet. So remain in the video and see the full video for that. So as you can see easily here, we are seeing ionic compounds topic. So let me start the topic for you. Okay. See here, what are ionic compounds? Ionic compounds are those compounds which are made up of ions. That is a very simple definition. But what are ions? These ions are how ions are formed. In 9th class, my earlier videos, I have shown you how ions are formed. Ions, you know that the atoms have been classified into metals and non-metals. On which basis they have been classified? Earlier you have studied only physical properties and etc. But they have been actually classified on the basis of the electrons. If an element can lose electron, then it is a metal, and if it can gain electrons, then it is a non-metal. So you have studied earlier about valency. I will also upload the video of 9th class valency. What is valency? So generally the metals have valencies 1, valency 2, or valency 3. What is the meaning of valency? The number of valence electron or combining capacity. So in the 1, the number of valence electron, the electrons in the last shell, if you remember from the 9th class, here is 1, here is 2, here is 3. Some example we will take in the next section. So what are the ions? Ions are the atoms that gain or lose electrons, giving them a net. वो एटम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं या लूज किए हुए हैं, तो उनके ऊपर एक चार्ज आता है, जिसको हमने पहले देखा होगा, हमने 9th में आपने, कि कैसे हम उनको कंबाइन करते हैं एटम्स को, कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनती हैं, कटायन और अनायन जिनको हम बोलते हैं, कि आयंस कैसे एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्यों लूज करते हैं, फॉर अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आती हैं. मेटल्स टेंड टू लूज, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए मेटल्स हैं वो. और इसलिए मेटल्स क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस, कटायंस. कटायंस आर, व्हाट आर कटायंस? दे आर पॉजिटिव आयंस. when electron is loose, we get positive ion. When electron is gained, we get negative ion. Why negative ion? Because the electrons have negative charge. When negative charge is lost, then positive charge will come. If negative charge is gained, electrons are gained, then negative charge will increase. Why? Because in an atom, number of electrons and protons is same. But when an atom gains electron, then it will attain negative charge. If an atom lose electron, then it will attain positive charge. So
By the same method, some atoms which lose electrons are called cations, and atoms which gain electrons and become ions, that ions are known as anions. Or on the base of that, elements have been classified into two categories: metals and non-metals. Non-metals gain electrons to form anions which have negative charge. So from where do the non-metals will gain electrons, and where the electrons of metals which have been lost by them go? कहाँ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन? आपस में ही जाते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स गेन कर लेते हैं, उससे क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं फिर? आयोनिक या आयनिक कंपाउंड्स। इसके एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़े हुए हैं पहले से, जैसे आपने NaOH और ये सारे एग्जाम्पल इसमें पढ़े हुए हैं। आपने आयंस भी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, ये वाली सारी। तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक ये है नहीं है, फिर भी आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं इनके कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में, वैसे 3 टाइप्स होते हैं बॉन्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं। एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज नोबल गैस? जो नियरेस्ट उसके उस टेबल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आ सकते हैं, जैसे 2, 8, किसी में लास्ट में 8 आ सकते हैं। 8 से ज़्यादा तो लास्ट शेल में ले नहीं सकते हमने, ये हमने 9th में पढ़ा है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट में शेल में, और कई बार 2 भी होते हैं। In a reaction between metals and non-metals, metals generally lose electron to complete their octet, and non-metals gain electron to complete their octet. So metal and non-metal generally react to form ionic compounds. इसका हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे अभी, आप इसमें देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं आगे, तो देखिए एटम का नाम, एक एटम में ले लेता हूं। जैसे एटम का नाम हमने ले लिया सोडियम, लेट मी शो यू। हमने एक एटम लिया, एटम का नाम है सोडियम, इसका सिंबल है Na। तो Na का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 11, आप इसको याद करेंगे पीरियोडिक टेबल से। एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या देखेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बनेगी? देखो, फर्स्ट शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 आ जाएंगे इसमें, और थर्ड शेल में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 1। तो आपका लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अगर आप लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन देखें तो आपके लास्ट शेल में हुए इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। और अगर इसको नोबल गैस, किसी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है सोडियम के, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या कर सकता है ये? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, ताकि लास्ट में कितने आ जाए? 8। कैसे? क्योंकि लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, चाहे वो कोई भी शेल हो, 3 हो, 4 हो, कैपेसिटी उसकी कितनी भी हो, लेकिन अगर वो लास्ट बन जाएगा तो लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं आते। तो इसकी इसी बेस पे अगर हम देखें कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो द वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सेम रहेंगे, वैलेंसी विल बी 1। तो इसका मीनिंग है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाए, इसमें क्या हो जाएगा? पहले अगर एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? एटम होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, सेम प्रोटॉन का नंबर होता है। ये आपने पहले एटम्स में पढ़ा होगा 9th में। इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें 11, प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का नंबर 11, तो चार्ज कैसे हुए? यहाँ 11 चार्ज क्या हुआ? माइनस नेगेटिव ऑफ 11, और इनका चार्ज हो गया चार्ज प्लस 11। अगर हम यहाँ देखें इसका चार्ज कितना होगा? इसमें प्लस
11। टोटल चार्ज एटम पे कितना होता है? -11 +11 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देता है, क्योंकि लूज करना आसान है इसके लिए, लूज करने पर इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? लूज करने पर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? अगर Na में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? अगर आप ध्यान से देखें, Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। कौन? Na। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज क्या आ गया? देखिए आप यहाँ से चार्ज, ये -11 जो था, ये जो -11 है आपका, ये आपका प्लस, ये रह जाएगा -10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने रह गए अब? जब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, क्योंकि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वो होती है जिसके लास्ट में शेल में कंप्लीट है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सोडियम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अब, इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, इलेक्ट्रॉन रह गए 10। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन तो लूज होते ही नहीं है 11। तो चार्ज कितना आ गया? अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे अगर देखें तो -10 और प्लस में कितना है? प्लस में अगर चार्ज देखें तो +11। तो चार्ज आपका नेट कितना आ गया अगर आप ऐड करके देखें इसको? इज इक्वल टू +1। इस पे +1 चार्ज आ गया सोडियम के ऊपर, तो इट विल बिकम, नाउ इट विल बिकम Na प्लस, तो ये Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो इसको, ये है मेटल, सोडियम इज ए, सो सोडियम इज ए मेटल। तो आप ये समझ रहे होंगे अब, आई थिंक। इसके बाद आप देखिए, ऐसे ये प्लस और माइनस आयंस बनती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, दूसरा लूज करता है। तो अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। क्यों इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इनको हम बोलेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसमें ट्रांसफर होती है, एक शेयरिंग होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम कोवेलेंट में। इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस होती हैं। कैसे आयंस होती हैं? देखिए आप, सोडियम, ये आपका सोडियम दिया हुआ है इसमें, अगर आपको मैं दिखाऊं इसमें और क्लियर करके आपको थोड़ा इसमें, हाँ देखिए, ये है आपका सोडियम, सोडियम का इनर पोर्शन, ये आपका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड शेल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? सोडियम, जैसे हम लिखें अगर इसमें, ये है आपका सोडियम एटम। जब ये एटम है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। यहाँ चार्ज इसमें +11, यहाँ पे +11 और बाहर 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो -11, तो चार्ज है 0। अब क्या करेगा ये सोडियम? जब आयन बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। क्यों आयन बनाते हैं, क्यों लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कौन से नोबल गैस बन जाएगी इसमें? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी नोबल गैस की? आप देखिए, सोडियम में आपको मैंने पहले जैसे समझाया, लास्ट में 2, फर्स्ट शेल में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट में 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते, कैपेसिटी 2 की है। सेकंड शेल में आपने देखा 8 इलेक्ट्रॉन, आ तो इसमें 8 ही सकते हैं, तो 8 ही हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया आपका थर्ड शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ये थर्ड शेल में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज हो जाएगा, तो इसकी कॉन्फिगरेशन में लास्ट रह जाएगा 2, और ये लास्ट शेल रह जाएगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो ये 2 ही शेल रह गए। 2 8 अगर कॉन्फिगरेशन है तो ये नोवल गैस नियरेस्ट, अगर नियोन देखी जाए तो नियोन की कॉन्फिगरेशन इसके पास आ गई, मतलब ये लास्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट में बच जाएंगे। तो ये इसमें दिखाया हुआ है सोडियम एटम जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर +1 चार्ज आ गया। +1 को ऐसे दिखाते हैं, 1+ यहाँ लिखते नहीं है, अगर 2 होता तो हम लिखते। ये और एग्जांपल हम देख लेंगे। फिर आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन कैसे है, क्लोरीन में अगर आप देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का सिंबल क्या है, क्लोरीन का सिंबल है Cl, दिस इज सिंबल ऑफ क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर अगर आपको मैं भी लिख के दिखाऊँ भी एटॉमिक नंबर, तो ये देखिए अब हम क्लोरीन का देखेंगे। ऐसे ही Na में तो हमने पॉजिटिव चार्ज देख लिया, फिर आ गया क्लोरीन के ऊपर। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लोरीन में देखिए Cl, इसका सिंबल है क्लोरीन का, Cl इज सिंबल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 17 का बन गया 2 फर्स्ट में, सेकंड में 8, थर्ड में 7। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इजी क्या है, 7 को लूज करना या 1 गेन करना? 1 गेन करना आई थिंक इजी है। अगर ये 7 लूज करेगा अभी तो ये 7 जाएंगे कहाँ? अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम बन गई, लास्ट वाले में 8 आ गए तो ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करना होता है ऑक्टेट, इसीलिए एटम जो है आपस में गेन और लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, या शेयर करते हैं अगर गेन लूज ना कर पाए। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट शेल ये बन जाएगा। बस एक ही कमी है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज कर दे, पर 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता। तो यहाँ ये 8 पूरे करने की कोशिश करे, लास्ट वाले में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, चाहे इसकी कैपेसिटी आप थर्ड की कैपेसिटी चाहे 18 की है, लेकिन लास्ट है तो उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अब इसको 8 चाहिए लास्ट में थर्ड वाले में, तो या फिर सेकंड वाले थर्ड वाले को पूरा लूज कर दे, इस 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। वो बहुत मुश्किल है 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इतनी एनर्जी नहीं होती। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर उसी पीछे वाली उस पर चला जाए तो इसकी वैलेंसी फिर क्या हो गई? वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, 4 तक तो सेम होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का ध्यान रखेंगे आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, प्रैक्टिस हर एक चीज़ की करनी चाहिए, चाहे छोटी छोटी चीज़ है, 7। लेकिन वैलेंसी कितनी है इसकी? वैलेंसी वो होती है जितने ये लूज या गेन कर सकता है कैपेसिटी। तो वैलेंसी इसकी कितनी है? अब इसको 8 चाहिए लास्ट में, तो ये कितने ले सकता है? 1 ले सकता है। 7 लूज कर दे या 1 गेन कर ले, तो ये 1 गेन करेगा, ये इसकी वैलेंसी है। तो इस पर चार्ज भी क्या आएगा? अब हम चार्ज देखेंगे तो प्रोटॉन, ये हर बार आपको लिख के नहीं देखना, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। प्रोटॉन 17, तो प्लस का कितना आ गया? +17। ऐसी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन लिख दिया मैंने, प्रोटॉन्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे। प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स आर, देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स शुरू में। तो चार्ज कितना होगा इसमें? -17। ये तो जब एटम है, जब ये आयन बन जाएगा, तो आयन बनने पे इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा? जो हमने एब्सोल्यूट चार्ज हम मानते हैं, उसमें चार्ज मानते हैं जो रिलेटिव में 1 होता है, -18। और प्रोटॉन्स का चार्ज अगर देखा जाए, प्रोटॉन्स तो उतने ही है, प्रोटॉन तो लूज गेन नहीं होते, वो तो न्यूक्लियस में है 17। तो चार्ज भी कितना होगा उनका, जो आपको पहले बताया गया था, +17। तो नेट चार्ज कितना आ गया? नेट चार्ज ये हो गया आपका -18 एंड +17।
दैट विल बी इक्वल टू, ये आप इजीली बता सकते हैं, दैट विल इक्वल टू -1, -1 चार्ज। तो आपका Cl जब बनेगा, जब क्लोरीन बनेगा, तो क्लोरीन की आयन बनेगी जो, उसमें कितना चार्ज होगा, माइनस, लिख सकते हैं या -1, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड, जब इसकी आयन बन जाएगी। और जनरली मेटल्स की आयन को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल की आयन को हम बाद में लिखते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो आई थिंक वो आप चीज़ें समझ गए जो मैंने बताई हैं अभी। ये मैथ्स की वर्कशीट भी साथ में, मैथ्स आपको बाद में समझाएंगे, मौका लगे लाइव क्लास का। तो आप समझ गए, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये इसकी आयन बन गई। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, क्या बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड शेल कहाँ गया, थर्ड का इलेक्ट्रॉन ही चला गया। तो शेल हम देखने की जरूरत ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहाँ पे, उस शेल का कोई ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं है उसमें। ठीक, अब देखिए आप, तो ये सोडियम आयन है, +1 चार्ज है इस पर, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक प्लस लिख दिया उसका अंडरस्टूड है Na+। और कहाँ लिखते हैं हम चार्ज को, ऊपर। सोडियम आयन इज ए कटायन, कैट आयन, पॉजिटिव आयन। ऐसी क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जो सोडियम से इसने लिया था, यहाँ से देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया लास्ट शेल में। तो इसके लास्ट फर्स्ट शेल में इसके भी 2 होंगे, फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में पहले कितने थे, 2, 4, 6 एंड 1, 7। एक ये सोडियम से आ गया, तो अब इसमें ये कितने हो गए, 2, 4, 6, 8। वैसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन पास नहीं रहते, दूर दूर रहेंगे जितनी दूर हो सकती हैं। तो अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और प्रोटॉन उतने ही हैं नीचे 17, और इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सोडियम से, सोडियम ने लूज कर दिया। तो ये Na+ और ये Cl-, जब ये मिलेंगे ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो आप बहुत पढ़ते आ रहे हो, NaCl कॉमन सॉल्ट, जो हम काफ़ी दिनों से पढ़ते हैं पहले भी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो हम आगे कोई लाइव सेशन भी ले सकते हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं चैनल में तो मैं लाइव सेशन भी ले सकता हूँ। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का देख सकते हो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको मैं करके दिखाऊँ तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। 2 मिनट रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ। थोड़ी सेटिंग हट जाती है। क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, आप बने रहिए इसके साथ, वीडियो के साथ। वीडियो कभी भी आप बीच में मत छोड़ के जाइए, फिर उससे आपको पता नहीं लगता कि आपने क्या खोया है। मैग्नीशियम Mg, ये मैग्नीशियम का सिंबल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, जस्ट आफ्टर सोडियम, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में पीरियड में आता है ये 12 वाला। तो इसका होगा 2। पीरियड कैसे आता है वो आपके आगे वीडियोस में समझाएंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। 282 इसके, ये हम लिख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड है अब? तो 282 क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, E.C, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ये कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है लिखने का, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं शेल्स में। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम देखें, इसको बड़ा करके बाद में दिखाएंगे। तो 282 हो गया, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट शेल है इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि लास्ट वाले में 8 ले सकता है, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में 8 आ सकते। लास्ट वाला अगर होगा तो 8 ले सकते हैं हम, फर्स्ट में सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ अगर 2 लास्ट में है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने हैं। 6 गेन करने के बजाय ये चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये चले जाएँ और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2, 8, इसके 2 ही शेल बचेंगे जैसे सोडियम में बचे थे। तो ये ज़्यादा प्रेफर करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 2, 8 बच जाएगा। समझ गए आप? आई होप समझ गए होंगे। अब एक करेगा क्या, वही सेम है इस पर भी। प्रोटॉन कितने हैं, अगर ये 12 है तो प्रोटॉन्स का नंबर आपको बताया था, प्रोटॉन्स विल बी 12, सेम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। जब आयन बनेगा तब अलग बात है, आयन बनती कैसे वो दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, वो भी 12 होगा। तो चार्ज, अब मैं चार्ज इजीली लिखता हूँ, वैसे सीधे समझा दूँ आपको।
प्रोटॉन्स का चार्ज होता है प्लस में, तो +12, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -12। टोटल चार्ज कितना हो गया इन पे, एटम पे 0। लेकिन जब ये लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो प्रोटॉन का चार्ज +12, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने रह गए अब, 10। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। कैसे 10 रह गए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बचे कितने, 2 और 8 10। लूज क्यों कर रहा है, ताकि नियरेस्ट गैस की, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, इसके शेल कंप्लीट हो जाए। अब देखिए +12 -2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +2। वैसे हमें 2 भी देते तो प्लस है, लेकिन प्लस लिखा है इसलिए क्योंकि माइनस भी तो सकता है वो, तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है चार्ज। ऐसी क्लोरीन का तो आपने पहले देख ही लिया, लेकिन अब क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और मैग्नीशियम को कितने देने हैं, 2। तो यह समस्या कैसे सोल्व होगी। इस समस्या को सोल्व करने के लिए भी आपको, समस्या कोई नहीं है, समस्याएं सारी सोल्व हो सकती हैं इजीली, बस आपको समझने की देरी है, थोड़ा बनिए। समस्या इसमें कोई नहीं है, नेचर में चल रही है, नेचर में सब चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं। अब क्या इलाज होगा, भाई मेरे पास रोटी है 2 और एक आदमी एक ही खाएगा, तो हम 2 रोटी खिला देंगे। 2 रोटी कैसे, 2 आदमी ले लेंगे। तो ये देखिए मैग्नीशियम आपका, चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर देते हैं। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसमें आप घबराइए मत, क्योंकि कुछ समझाना है तो फिर ढंग से समझाने में मजा है। मैग्नीशियम में देखिए फर्स्ट में 2, ये सबके लिए स्टैंडर्ड है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, अगर इनको गिना जाए। फिर थर्ड में इसके 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है मैग्नीशियम की 2, 8 एंड 2, 2, 8, 2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है। तो ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल आपको दिखाया गया इसमें थर्ड शेल, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने हैं। अब अगर इसको क्लोरीन के साथ बनाना है, क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हम क्या करें, 2 एटम ले लो क्लोरीन के। क्लोरीन का आपने देख ही रखा है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। दूसरे शेल में 2, 4, 6, 8, ये दूसरा। थर्ड शेल में 2, 2, 4 और 2, 6, एक यहाँ पे 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे देखिए एक एटम को, और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया दूसरे वाले एटम को। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, कभी होता है NaCl, कभी होता है MgCl2, कभी होता है जिंक क्लोराइड, जो पीछे वाले में था ZnCl2। अब कभी कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि कितने एटम एक उसमें बन रही है। इसका एक एटम नहीं, इसके 2 एटम चाहिए क्लोरीन के। देखो फर्स्ट शेल में 2, इसमें भी सेकेंड में 2, 4, 6, 8। थर्ड शेल अधूरा है, थर्ड शेल में 2, 4, 6, 7। एक इस पर अल्टरनेटिव है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दूसरा अल्टरनेटिव है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। मैग्नीशियम को 2 देने हैं तो वो 2 को दे देगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको। तो एक फॉर्मूले में कितने आएंगे, मैग्नीशियम कितने आए, 1, क्लोरीन कितने आए, 1 और 1 2। तो इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। अब ये आयन बन गई, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा, 2+, जैसे पीछे दिखाया था आपको। क्लोरीन पे 1, -1, -2 नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया इसने, 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, 18, प्रोटॉन इसमें 17। तो चार्ज माइनस का 1 बढ़ गया, ऐसे ही जहाँ भी माइनस का 1 चार्ज बढ़ गया, इंक्रीजेज। सो टोटल इसका भी चार्ज पे 1 नेगेटिव, इस पे 1 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए आप मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, लूज कर दिए, तो Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बाहर आए। वो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लिए, तो ये 2 क्लोराइड आयंस बन गई, 2 क्लोराइड आयंस विल बी फॉर्म। फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास आयन, फिर क्या बनेगा, MgC, कैपिटल, एटम का पहला सिंबल कैपिटल, L, क्योंकि Cl2 है, मैग्नीशियम 1 था। तो आप समझ गए होंगे आई होप। कोई डाउट्स कुछ भी हो आपके, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आप शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा, तो लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो लाइव क्लासेस से पूछ सकते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, इन्होंने पूछे हैं, व्हाट आर एनायंस एंड कटायंस, हाउ आर दीज कटायंस एंड अनायंस
फॉर्म। तो मैं आपको इसका चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अगर मैं इसको क्वेश्चन वाइज आपको दिखाएंगे अभी, थोड़ा आप वेट कीजिए। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, तब तक कोई फायदा नहीं है फिर इसका। आई होप ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर अनाइंस एंड कटाइंस। मैं सीधा आंसर आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप सामने से दे सकते हैं। तो आंसर आपका व्हाट आर अनाइंस एंड कटाइंस। तो एनाइंस आर नेगेटिव ions formed by loss of electrons या gain, formed by gain of electrons by an atom। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयंस बनेंगी। अब अगर चाहें तो फॉर एग्जांपल इसमें बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, क्लोराइड आयन, जिसको हम क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव, Cl माइनस आयन जैसे हो गई। फिर उन्होंने पूछा है कैटाइंस, कैटाइंस आर नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, और ये पूछा जाता है। ये तो उसका आंसर हो गया, साथ में इसका मैंने दोनों पार्ट्स का आंसर साथ में दे रहा हूँ। पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स। कौन से एटम्स, वो मेनली मेटल ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, उसको आप लिखेंगे Na+। बने रहिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अब हम। ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आंसर सेकंड आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर, हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म। ये आप लिखेंगे इसमें, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू another atom, that is from cations to anions। इसमें भी एग्जांपल दे दिया करो, फिर भी बढ़िया है। फॉर एग्जांपल
sodium atom loses one electron and form Na plus ion and chlorine chlorine atom gains one electron to form Cl minus ion. They they combine together to form ionic compound sodium chloride, that is NaCl. Okay, this is question third का आंसर. नाउ क्वेश्चन सेकंड का आंसर था, क्वेश्चन थर्ड इसका आंसर हम लिख रहे हैं. Why atoms tend to gain or lose electrons? तो वो आपको पता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप करते हैं. तो एटम्स tend to gain or lose electrons to attain nearest noble gas configuration and complete their last shell. जो लास्ट शेल है उसको ये कंप्लीट करना चाहिए. जस्टिफाई द स्टेडियम इज कैल्शियम ऑक्साइड इज ए आयनिक कंपाउंड. क्या कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, ये आपको जस्टिफाई करना है. उसके लिए आपको इसके एटम्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसका पता होना चाहिए कि क्या क्या है उसमें. आंसर 4. यस, calcium oxide is a ionic compound as it is formed by Ca2 प्लस, ये 2 जो है ये ऊपर आएगा सुपर स्लिप में, एंड O2 माइनस या O2 माइनस ions where calcium
loses 2 electrons and oxygen gain 2 electrons. Therefore, transfer of electrons takes place. इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इसलिए आयनिक कंपाउंड है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको इधर ही दिया जाएगा. तो आपको सोडियम क्लोराइड की नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की, तो इससे आपका आयनिक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सोडियम क्लोराइड की आप फॉर्मेशन बताइए कि कैसे होती है. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय सुटेबल डायग्राम. अगर डायग्राम से हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन दिखाना चाहें तो ये है आपकी डायग्राम से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन. यहाँ पर ये आप दिखा सकते हैं इजीली. ये यहाँ से ये है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और कोई आपकी क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप बताएं और कमेंट्स में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो. और अपना अच्छी तरह प्रिपेयर करें, अच्छी तरह. ये बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है. थैंक यू वेरी मच. आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें. थैंक यू.